How was yesterday's rock practice? How many of you could do it? How many of you could build a relationship with your rock? And how was the feeling of Ho'oponopono yesterday? Who would like to share? No one? Please on your cameras. I'm not going to talk to the walls or cameras. Hello. Am I audible? Okay. Please on your cameras. Rest of the people, please on your cameras. Let's join our hands, close our eyes. Take a deep breath in and out. Take one more deep breath in and out. Relax yourself. Take a deep breath in and out. Thank you, universe, for this divine time. Thank you, universe, for the divine nature. Thank you, universe, for bringing us together on this platform so that we know how to live a fulfilling life. Thank you, universe, for all the abundance that is coming into my life in all forms of the health, relationships, money, and my career. Thank you, universe, for guiding us in this journey so that we know what we need to speak and what we need to learn. Thank you, universe, for being with us and guiding us throughout this journey so that we go deep inside us and understand how to live a fulfilling life. Thank you for making me a channel of blessings. Thank you. Thank you. Thank you. कैम रमेश कुमार जी, आपका कैमरा ऑन कीजिए प्लीज. अकीला, Dhara ji, as soon as you reach home, please keep your cameras on because the more we have an interactive session, अच्छा लगता है कि हम किसी और से बात नहीं कर रहे हैं, right? Okay, let's start. Nothing is there to share. Manjusha ma'am, how was yesterday's practice? Yes, ma'am, it was nice. It was good. And Ho'oponopono, how was Yes, you yes, ma'am. sleeping? Could you sleep nicely? Yes, yes. Great. So I hope today you all have got your photographs of the relations which you want to work on. So today's we have reached to day 3, that is the magical relationships. आज हम मैजिकल रिलेशनशिप के बारे में बात करने वाले हैं. हाउ कैन यू मेक योर रिलेशनशिप मैजिकल, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू फील कि अगर हमारी जिंदगी में रिलेशनशिप नहीं है तो वी आर ऑफ नो यूज इन दिस अर्थ? डू यू फील that relationships are important in your life? Okay.
So here she has given you the picture showing a photograph, a frame is shown here. See, even the pictures what are there in the book, they are saying something to us. So watch very carefully. अब इसमें देखिए, imagine if you were the only person on earth, you would have no desire to do anything. सोचो अगर आप अकेले रहते यहाँ पे, क्या होता? आप किससे बात करते? आप किससे शेयर करते? राइट? सो हाउ द फैमिलीज वर फॉर्म्ड, हमारी फैमिली किस तरीके से बनी, हमारे रिलेशनशिप्स किस तरीके से बने कि हम एक दूसरे को पूरक हो जाए. राइट? सो what would be the point in creating a painting if no one could see it? What would be the point in composing a music if no one could hear it? What would be the point in inventing anything if there was no use to it? There would be no reason to move from one place to another, because wherever you went would be the same as where you were. Okay, so there would be no reason to move from one place to another. आप जहां थे वही रहते थे, आपको दूसरी जगह पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि वहां पे कोई था ही नहीं कि हम जिसको मिल सके. राइट? So there would be no reason to move from one place to another, because wherever you went would be same as where you were. No one would be there. There would be no pleasure, no joy in your life. कितना अकेला महसूस होता अगर हमारे पास कोई नहीं होता धरती पे. So it's your it's your contact and experiences with other people that give your life joy, meaning and purpose. ओके, यानी आपका जो कांटेक्ट है सब लोगों के साथ में, आपके जो एक्सपीरियंसेस हम फॉर्म करते हैं जब हम दूसरे लोगों से मिलते हैं. राइट? वी डू गेट एक्सपीरियंस, हमारे पास बहुत अनुभव होते हैं कि जब हम दूसरे लोगों से मिलते हैं. सो दैट गिव्स द पर्पस इन योर लाइफ एंड गिव्स यू जॉय. बिकॉज ऑफ दैट योर रिलेशनशिप्स अफेक्ट योर लाइफ मोर देन एनीथिंग एल्स. आज सोचो आपके पास बड़ी बड़ी कार है. राइट? आपके पास बहुत बड़ी कार है, आपके पास बहुत अच्छा घर है, आपके पास पैसे भी भरपूर है, पर आपके पास कोई साथ में रहने वाला नहीं है, तो क्या होगा? राइट? सो बिकॉज ऑफ दैट योर रिलेशनशिप्स अफेक्ट योर लाइफ मोर देन एनीथिंग एल्स. टू रिसीव द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स, it's vital that you understand how your relationships affect your life now, and how they are the most powerful channels for gratitude to start magically changing your life. So imagine अगर आपके पास relationship नहीं होते, how they are most powerful channels for gratitude to start magically changing your lives. तो वो बता रही है कि देखो, सबसे पहले हमने क्या सीखा? फर्स्ट डे काउंट योर ब्लेसिंग्स. सेकेंड डे हमने क्या किया? द मैजिक रॉक प्रैक्टिस. राइट? अब वो बोल रही है कि वी हैव टू स्टार्ट changing our life through the gratitude for our relationships. Science is now confirming the wisdom of the great sages of the past, with, with research studies showing that people who practice gratitude have closer relationships. यानी जो अपने रिलेशनशिप्स को धन्यवाद बोलते हैं, उनके लिए एक साइंस ये बता रहा है, रिसर्च की हुई है, रिसर्च हो गई अभी देखिए इसके ऊपर, शोइंग दैट पीपल हु प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड हैव क्लोजर रिलेशनशिप. यानी जो ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस में रहते हैं, जो थैंकफुलनेस में रहते हैं, उनके रिलेशनशिप्स काफी अच्छे होते हैं, एंड आर मोर कनेक्टेड टू फैमिली एंड फ्रेंड्स, हैव अदर पीपल लुक अपॉन देम फेवरली. बट probably the most astounded statistic that has come out of the research studies is that everyone complain about another person, whether in thought or word. There have to be 10 blessings for the relationship to flourish. यानी वो बता रहे हैं कि अगर हमने एक भी कंप्लेन कर दी ना अपने रिलेशनशिप्स के बारे बारे में, तो आप 10 स्टेप्स पीछे चले जाते हो,
और उसके लिए आपको पूरे 10 ब्लेसिंग्स लिखने पड़ते हैं वापस से, ताकि वो रिलेशनशिप पहले जैसा हो सके। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम से, प्लीज ऑन योर कैमरास, आई वुड लाइक टू सी द फेसेस, बिकॉज मुझे कनेक्टिविटी फील नहीं होती है इस तरीके से। अगर आप पूरी तरीके से ध्यान दे पा रहे हो सेशन में, मुझे कैसे समझ में आएगा? कीप योर कैमराज ऑन एंड प्लीज आंसर, कीप इट एज इंटरैक्टिव सेशन। मैं जब कोई क्वेश्चन पूछती हूँ उसका आंसर दीजिए। आई वुड लाइक टू सी योर स्माइलिंग फेसेस। मुझे आपके चेहरे ही नहीं दिखते हैं, हंसते खिलखिलाते हैप्पी वाले। तो जो भी, यानी अभी देखिए ये बता रहे हैं बुक में कि साइंस ने भी रिसर्च किया है कि जो लोग अपने रिलेशनशिप्स को धन्यवाद देते हैं, उनके रिलेशनशिप्स में और ज्यादा फ्रेंडशिप, और ज्यादा प्यार, और ज्यादा विजडम, और ज्यादा हैप्पीनेस, और ज्यादा जॉय आना शुरू हो जाता है। और अगर हमने एक भी कंप्लेन कर दी उस रिलेशनशिप के बारे में, फिर वो वेदर अपना हस्बैंड हो, बच्चे हो, मदर इन लॉ हो, फादर इन लॉ हो, आपका वो रिलेशनशिप 10 कदम पीछे चला जाता है। सो एनी लेस देन 10 ब्लेसिंग्स फॉर एवरी वन कंप्लेन एंड द रिलेशनशिप विल डिटोरिएट। एंड इफ द रिलेशनशिप इज अ मैरिज, इट इज मोस्ट लाइकली टू एंड इन डाइवोर्स। यानी अगर आपने, राइट, अगर आपने, इमेजिन करो आपने थोड़ा सा भी अपने रिलेशनशिप में थैंकफुलनेस नहीं लाया, तो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप, अगर वो शादी हो, तो वो डाइवोर्स में एंड हो सकती, ऐसा बता रहे हैं। सो ग्रैटिट्यूड मेक्स रिलेशनशिप फ्लोरिश। एज यू इंक्रीज योर ग्रैटिट्यूड फॉर एनी रिलेशनशिप, सबसे पहले ये बताइए कि अगर आपकी कोई बच्चा है या आपका कोई एल्डर है, अगर आपके सपोज फादर इन लॉ ने ही कुछ आपको आके दिया और आपने अगर उसको थैंक यू बोल दिया, तो क्या फर्क पड़ता है? राइट? क्या फर्क पड़ता है? जैसे ही आपने कोई चीज आपके फादर इन लॉ के लिए कर दी, या आपने उनको कुछ करके दे दिया, या उन्होंने कुछ आपको ला के दे दिया और आपने उनको थैंक यू बोल दिया, क्या क्या फर्क आता है उनके बोलचाल में? कोई एक तो बताओ अनम्यूट करके। आज सभी चुप है। सैटरडे मना रहे हो क्या? यस। Okay, gratitude makes relationships flourish. As you increase the gratitude for any relationship, you magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship. So as you increase gratitude, यानी आप जितना धन्यवाद या कृतज्ञ हो जाओगे अपने उस रिलेशनशिप के लिए, आपका, आपके वो जो संबंध है वो और अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। Any gratitude for your relationship doesn't change, and sorry, and gratitude for your relationship doesn't change only your relationship, it also changes you. आप देखोगे कि आपके अंदर भी फर्क आना शुरू हो गया है। No matter what your temperament is now, gratitude will give you more patience, understanding, compassion, kindness to the point where you won't even recognize yourself. तो जब आप ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे कि मैं रोज अपने अपने रिलेशनशिप्स के लिए थैंक यू बोल रही हूँ, मैं रोज अपने संबंधों को और गहरा बना रही हूँ, उनको, उनके लिए शुक्रगुजार होके, तो आप देखोगे कि आप खुद बदल गए हो। आपकी खुद की बोलने में एक फर्क आ गया है, आपके सोचने में एक फर्क आ गया है, आपके जो विचार करने की शक्ति है उसमें एक फर्क आ जाएगा। So, no matter what your temperament is now, she's saying your gratitude will give you more patience, understanding. कि आप अपने आप को पहचानना भूल जाओगे। The little irritations you once felt that and the complaints you had in your relationship will disappear। यानी आपने जो छोटी छोटी कंप्लेन रोज की करते हो ना, अपने मदर इन लॉ से या अपने फादर इन लॉ से या हस्बैंड से या बच्चों से,
वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएगी, बिकॉज व्हेन यू आर ट्रूली ग्रेटफुल फॉर अनदर पर्सन, there's nothing you want to change about that person. मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि आपको सामने वाले को चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जो चेंज अपने अंदर लाओगे वो बाकी की सब चीजें हैंडल कर लेगा। सो यू वोंट क्रिटिसाइज, आप कंप्लेन करना नहीं छोड़ दोगे, सॉरी, और ब्लेम देम, बिकॉज यू आर टू बिजी बीइंग ग्रेटफुल। यानी आप इतने थैंकफुलनेस हो जाओगे कि आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा कि आप उनको कंप्लेन करो या बुरा भला बोलो, ताने मारो, because you are too busy being grateful for the good things about them. In fact, you won't even be able to see the things you used to complain about. धीरे धीरे आप वो भी कंप्लेन करना भी छोड़ दोगे। आप आज तक जो भी चीजों की कंप्लेन कर रहे थे अपने रिलेशनशिप में, आप वो भी करना छोड़ दोगे। वी कैन ओनली बी सेड टू बी अलाइव इन दोज मोमेंट्स व्हेन आवर हार्ट्स आर कॉन्शियस ऑफ ट्रेजर्स। ओके, हम उसी समय जिंदा होते हैं जब हमको कोई हैप्पी मोमेंट्स मिलती है, राइट? आज आप याद करो, जब भी आप अपनी फैमिली के साथ में गुड टाइम्स में बाहर गए हो और आपने कुछ सेलिब्रेट किया है, तो आप अगर आपके कोई रिलेटिव्स को मिलते हो या फ्रेंड्स के पास जाते हो तो क्या होता है? वो आपको पूछते हैं ना, तो आप या उनको बताते हो, तो आप कितना खुश होके बताते हो, राइट? आप कितना खुश होके बताते हो, अरे मेरी फैमिली के साथ में आज मैं यहाँ गई थी, हम लोग ने ये खाना खाया, मैं हमारी फैमिली को आउटिंग के लिए लेके गया था, ये किया मैंने, मेरे बच्चों को बाहर लेके गया था। तो इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो हमारे अंदर कितनी खुशी आ जाती है, राइट? वी फील so happy. So we can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures, यानी अपने अंदर जब वो हैप्पीनेस की फीलिंग भरी हुई रहती है। Thornton Wilder, 1897, writer and playwright. Words are very powerful. So, when you complain about any person, you actually harm your life. ध्यान करो ये सेंटेंस को. If you have books, underline it. Words are very powerful. So, when you complain about any person, फिर वो कौन भी होने दो, आपकी बाई भी होने दो, आपकी मेड होने दो, आपकी हस्बैंड होने दो, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, आपके पेरेंट्स होने दो, आपके जेठ जेठानी होने दो, या आपके बच्चे होने दो, अगर आपने किसी के बारे में भी कंप्लेन की ना, तो आप अपने आप को हर्ट कर रहे हो, आप अपने आप की खराबी कर रहे हो। यू आर हार्मिंग योर सेल्फ, बिकॉज जो वर्ड्स हम स्पीक करते हैं, दैट वो उनको हर्ट नहीं होते, हमको ज्यादा हर्ट होते हैं। इट इज योर लाइफ दैट विल सफर। Remember, words are very powerful. I'm reading this sentence again. Words are very powerful. So when you complain about any person, you actually harm your life. It's your life that will suffer. By the law of attraction, whatever you think or say about another person, you bring to you. ये ध्यान रखना, very important sentence, underline. By the law of attraction, वॉट एवर यू थिंक और से अबाउट दैट पर्सन, अगर आप उसके बारे में बुरा बोल रहे हो, ओके, आप दूसरे के पास से वो बुरी चीज लाओगे, कोई दूसरा आपको वो बुरी बात बोलेगा। रिमेम्बर दैट। हो सकता है आपने आपके हस्बैंड को बोला, आपकी बेटी या बेटा आपको बोलेगा, आपने आपके बेटे या बेटी को बोला, तो इधर आपका हस्बैंड आपको कुछ और बोलेगा नेगेटिव। तो रिमेम्बर, बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वॉट एवर यू थिंक और से अबाउट अनदर पर्सन, you bring to you. And this is the reason why the greatest mind and the teachers of the world have told us to be grateful. हमको पहले से सिखाया जा रहा है, टीचर्स भी बोलते हैं ग्रेटफुल रहो, ग्रेटफुल रहो। They knew that for you to receive more in your life, for your life to magically increase, you have to be grateful for others just as they are. Understand, for your life to be magically increase, you have to be grateful for others just as they are. क्या हम अपने पर्सन को, जो भी हमारा क्लोज पर्सन है, हम उनको जैसे है वैसे एक्सेप्ट करते हैं क्या? डू यू एक्सेप्ट? बताओ, आज मुझे बताओ। अनम्यूट योर सेल्फ एंड बताओ। Can I talk? यस प्लीज। Yes. We don't accept. Sometimes we crib a lot.
यस, वी क्रिब, हम जो वो बंदा जैसा है हम उसको वैसे छोड़ते ही नहीं है, राइट। वी आर राइट। जस्ट कंप्लेनिंग, तुम ये नहीं करते हो, तुम वो नहीं करते हो, तुम मेरा सुनते नहीं हो, मैं जो चाहती हूँ मेरे बच्चे मेरा सुनते नहीं है। व्हाट आर वी डूइंग, वी आर कंप्लेनिंग। बट कभी हमने ये सोचा कि जैसे हम एनर्जी है वैसे ही वो एनर्जी है, राइट। राइट। एंड दे हैव देयर ओन जर्नीज। एंड हम क्यों उनको अपनी तरीके से मोल्ड करना चाहते हैं? वाई यू वांट टू कंट्रोल देम? वाई यू वांट टू कंट्रोल देम? लेट देम बी राइट। हाउ दे आर, लेट देम लिव हाउ दे वांट टू लिव। इट्स नॉट नेसेसरी दैट आप हर उनकी चीज के ऊपर कंट्रोल रखो। ठीक है, एज करेक्ट। एज अ फैमिली मेंबर हमको जो उनको एक पर्सनल चीजें होती है आप उनके साथ अच्छे तरीके से डिस्कस करो, बट कंप्लेन मत करो। क्योंकि आप जितना उनके बारे में कंप्लेन करोगे यू आर हर्टिंग योर सेल्फ। ओके, yes, mute yourself. They knew that for you to receive more in your life, and for you have to accept, learn to accept the front person जैसा है वो। जैसे एक गाना था ना, कौन सा वाला था वो, श्रीदेवी का, क्या वो कौन सा, मेरा पति मेरा देवता है, बुरा है भला है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। दैट वे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरी पत्नी जैसे भी है वो मेरी देवी है, या मेरा पति जैसा भी है वो मेरा देवता है। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि इट्स नॉट ओनली अबाउट योर पति पत्नी, बट इट इज ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ अबाउट योर इन लॉज, आपका पेरेंट्स। हम हमारे पेरेंट्स को भी कितनी बार बोलते हैं, राइट। हम बोलते हैं उन्होंने हमारे लिए ये नहीं किया, उन्होंने हमारे लिए वो नहीं किया, मुझे पढ़ने नहीं दिया, मुझे डांस करने नहीं दिया, मैं ये चाहती थी कि मैं ये वाले बंदे से शादी करूं, मुझे उनके साथ शादी नहीं करनी थी। तो हम कितनी कंप्लेन करते हैं, बट हम ये नहीं सोचते कि उन्होंने जो लाइफ का सिचुएशन उन्होंने देखा उस टाइम पे, उन्होंने जो सही समझा वो किया। तो एवरी डे इफ यू कीप कंप्लेनिंग, आप सोचो अगर आप एक फैमिली में, आई टॉक ओनली अबाउट फैमिली, जैसे हम हस्बैंड वाइफ इन लॉज है हमारे घर में, राइट। और अगर आप बार बार आपके हस्बैंड को सिर्फ कंप्लेन ही कर रहे हो कि आप मुझे लेके नहीं जाते हो, आप मेरा सुनते ही नहीं हो, आप मुझे शॉपिंग नहीं कराते हो, आप मुझे कपड़े नहीं लेके देते हो, आप, मैं कोई भी बात बोलती तो आप समझते नहीं हो, तो क्या होगा? कि आप क्या बोल क्या रहे हो अपने मुंह से? आप बोल रहे हो आप मुझे शॉपिंग नहीं कराते हो, आप मुझे समझते नहीं हो, मैं जो कहती हूँ आप मेरा सुनते नहीं हो, आपने नहीं लगा दिया, राइट। आपने जैसे नहीं लगाया यूनिवर्स को मैसेज जाता है कि ये बंदा या बंदी नहीं बोल रही है, तो इसको ये नहीं तो वो वही देगा जो आपको चाहिए। यानी आपने बोल दिया कि वो नहीं नहीं सुनता है, तो वो आपके सामने वैसे ही बंदे को लाएगा आपके, कि आपका बंदा वैसे ही बिहेव कर रहा है आपके सामने कि वो सुनेगा ही नहीं, आपका बेटा सुनेगा ही नहीं आपका, आपकी बेटी सुनेगी ही नहीं फिर आपकी, बिकॉज आपने पावर ही उस वर्ड्स को दिया है कि जो आपको नहीं चाहिए, आप नहीं बोल रहे हो, राइट। तो अंडरस्टैंड दैट वर्ड्स हैव पावर। सो दे न्यू फॉर यू टू रिसीव मोर, for magically you have to be grateful for others just as they are. What if, सोचो अगर आपको कोई ऐसे ऐसे बंदा आके बोले, तू जैसी है ना मारिया, तू मुझे पसंद है, तू जैसी है ना मंजुषा, तू मुझे पसंद है। आप सोचो फीलिंग क्या आएगी आपके अंदर। 2 सेकंड लो, आइज बंद करो, और सपोज बोलो, इमेजिन करो जो भी आपके घर में आपका फैमिली मेंबर है, इधर आपका हस्बैंड है या इधर आपका बेटी है बेटा है जो भी, अगर उसने आपको ऐसे बोला कि मारिया तू जैसी है मैं तुझे वैसे एक्सेप्ट करता हूं या करती हूँ, सोचो आपके अंदर क्या फीलिंग आएगी। आप कितना खुश हो जाओगे, राइट। आपको कितना अच्छा लगेगा, यार मेरे अंदर कितने भी प्रॉब्लम्स है बट मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ मुझे उस तरीके से एक्सेप्ट कर रही है। तो सेम वे यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट द अदर पीपल। इफ यू वांट कि कोई आपको ऐसे आके बोले कि तू जैसी भी है मैं तुझे एक्सेप्ट करता हूं या करती हूँ, वैसे आपको भी एक्सेप्ट करना है। फिर वो आपके बच्चे हो, इन लॉज हो, कोई भी हो। If what if every person close to you said, I love you just the way you are? How would you feel?
टुडेज मैजिकल प्रैक्टिस इज बीइंग ग्रेटफुल फॉर द पीपल जस्ट एज दे आर, यानी जैसे आज हमारे रिलेशनशिप्स है हमारे बच्चों के साथ में, हस्बैंड के साथ में, इन लॉज के साथ में, उनको हम जैसे वैसे एक्सेप्ट करेंगे एंड विल बी ग्रेटफुल फॉर देम इवन इफ ऑल द रिलेशनशिप्स आर करंटली गुड। सपोज आपके बच्चों के साथ में रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, आपके हस्बैंड के साथ में रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, आपके इन लॉज के साथ में आप बोलोगे अरे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे रिलेशनशिप सब अच्छे हैं, बट स्टिल जब आप आज की प्रैक्टिस करोगे आपको ओपनिंग्स भी होगी और आपके वो रिलेशनशिप्स और अच्छे हो जाएंगे। तो आज जो मैजिकल रिलेशनशिप का चैप्टर है ना, ये हम करंट रिलेशनशिप्स के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। आगे जाके आपको वो भी चैप्टर आएगा रिलेशनशिप्स के ऊपर जहां पे हम वो रिलेशनशिप जो हमारे साथ में प्रॉब्लमेटिक हो गए हैं या ब्रेकडाउन्स हो गए वो रिलेशनशिप में, हम उसको भी हील करेंगे। सो इवन एंड टुमारो इज द हेल्थ चैप्टर, सॉरी। So today's magical practice is being grateful for the people just as they are. Even if your relationships are currently good, they will increase with more magnificence through this practice. And with everything you find to be grateful for in each person, you will see the gratitude perform its breathtaking magic. और आप देखना जब आप ये प्रैक्टिस आज से शुरू करोगे आपके रिलेशंस के लिए ये करने का, आप खुद मेरे को कल आके बोलोगे 2 दिन के अंदर क्या मैजिक हुआ आपके घर में। एंड योर रिलेशनशिप्स विल बी मोर स्ट्रोंगर, more fulfilling and more enriching than you ever thought they could be। कौन ऐसा चाहेगा कि आपका हस्बैंड सिर्फ ऊपर से आके बोले अरे मेरी वाइफ तो बहुत अच्छी है, और पीछे जाके अपने दोस्तों से ऐसे बोल रहा है अरे मेरी वाइफ तो बहुत किटकिटी है, ये कोई बात में मेरा सुनती नहीं है, रोज मेरे साथ झगड़ा करती है। आप चाहोगे क्या वैसा रिलेशनशिप? वुड यू से कि ये मेरा रिलेशनशिप फुलफिलिंग है और अच्छा है? कोई नहीं चाहेगा, राइट? तो they are saying that you might choose your wife, choose three of your choose three of your closest relationship to be grateful for। that is why we said कि आपको 3 photographs लेने हैं। आज आप क्या करोगे, वो 3 photographs को वन बाय वन लोगे। ओके, यू माइट चूज योर वाइफ, आप किस जिसका भी लेना चाहते हो, यू माइट चूज योर वाइफ, योर सन, योर फादर, or you might choose your boyfriend, your business partner, and your sister, or you might choose your best friend, your grandmother, and your uncle। You can choose any 3 relationships that are important to you। जो भी रिलेशनशिप आज आपको important लग रहा है आप उसके photographs लो, as long as you have a photograph of each person। The photograph can be just of the person or both of you together। Group photograph नहीं लेना है, family का भी। यू हैव टू टेक सिंगल फोटो और दैट पर्सन शुड बी सिंगल। इधर आपके साथ में अगर आपका बेटा, हस्बैंड, जिसका भी सिंगल फोटो है, या तो आपके पास वो होना चाहिए या तो आपका वो पर्सन का सिंगल फोटो होना चाहिए, बट डोंट टेक ग्रुप फोटो। ओके, देन यू विल नॉट बी एबल टू गिव योर एनर्जी। Once you have selected your 3 relationships and photographs, you are ready to set the magic into motion। Sit down and think about the things you are most grateful for about each person। आज आपको काम क्या करना है? आपको हर पहले एक बंदे का फोटो लेना है, आपके सामने रखना है, और उस फोटो को ऐसे आपके सामने रख के एकदम आइज टू आइज, यानी वो फोटो के में आइज, उसकी आइज देखनी है, राइट? सपोज आपने आपके बेटे का फोटो लिया है, आप आपके उस सामने रखोगे, आपकी आईज और उस फोटो में आप उनकी आईज की तरफ देख रहे हो डायरेक्ट, राइट? और आप जब उनकी आईज की तरफ पहले 2-3 सेकेंड्स और एटलीस्ट 5 सेकेंड्स आप सिर्फ ऑब्जर्वर इफेक्ट दो, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वर्स इफेक्ट। आप सिर्फ वो फोटो को पहले देखो, अगर 1 मिनट तक देख सकते हो तो देखो, क्योंकि आप जैसे देखना शुरू करोगे, देखना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, आपके अंदर एक फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी उस बंदे के बारे में। देन यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग फॉर अच्छी चीज देखनी है। उसके अंदर 100 बुरी चीजें होगी, बट 5 तो अच्छी चीज होगी। तो वो 5 अच्छी चीजों को आपको लिखना है। सिट डाउन एंड थिंक अबाउट द थिंग्स यू आर मोस्ट ग्रेटफुल फॉर अबाउट ईच पर्सन। फिर वो आपका बच्चा हो सकता है, बेटी हो सकती है, बेटा हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, इन लॉज, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, हुएवर यू वांट। व्हाट आर द थिंग्स यू लव द मोस्ट अबाउट दिस पर्सन? अगर आपका बेटा आपका पूरा काम करता है,
तो इजंट दैट गुड थिंग इन दैट? भले फिर वो आपका सुनता नहीं होगा, बट अगर वो आपको हेल्प करता है तो इजंट दैट गुड थिंग? सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट. व्हाट आर द बेस्ट क्वालिटीज? यू कुड बी ग्रेटफुल फॉर देयर पेशेंस. हो सकता है आपकी मदर इन लॉ के अंदर बहुत पेशेंस हो, और या फादर इन लॉ के अंदर बहुत पेशेंस हो, अगर आप उनके ऊपर वर्क कर रहे हो, राइट? योर आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द रिलेशनशिप्स. जो आपको क्या करना है, 3 फोटोग्राफ आपके जो नजदीक के रिलेशनशिप, आप जिसको ऊपर अच्छा बनाना चाहते हो, आप वो लोगे. एक फोटो लोगे पहले, सिर्फ एक बंदे का, एक साथ में तीनों के एनर्जी नहीं देना है. आपको पहले एक बंदे का फोटो लेना है. आप आंखों में आंखें डाल के देखोगे, ऑब्जर्वर इफेक्ट करोगे. उसके बाद आप आपकी नोटबुक लोगे और उसको फोटो सामने ऐसे रख के उसका नाम लेते जाओगे साथ में. जैसे मेरे बेटे का नाम है तो मैं मेरे बेटे का नाम लूंगी और बोलूंगी, अरे वाह बेटा, तू तो मेरा बहुत अच्छा बेटा है. मेरा हर काम करता है. तू मुझे हर चीज घर में लाके देता है. मैं तुझे रात को भी उठाती हूँ तो उठ के भाग के हर चीज लाके देता है. तो ऐसे आपको हर चीज के लिए थैंक यू लिखना है, उसके बारे में, उसकी जो भी बेस्ट क्वालिटीज है. आई एम ग्रेटफुल दैट यू गेट एवरीथिंग फॉर मी. आई एम ग्रेटफुल, मैं दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप मेरा ये सब काम करते हो बेटा. मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ. अपने पति को बोल रहे हो तो मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ. जो भी उनका नाम है, उनका नाम लीजिए और बोलिए कि आप मुझे बाजार ला के देते हो, आप मेरा ध्यान रखते हो, आप मेरी केयर करते हो, आप मुझे बाहर लेके जाते हो. मैं जब बीमार होती हूँ तो, या बीमार होती हूँ तो, या होता हो तो मुझे डॉक्टर के पास लेके जाते हो. ओके. सो राइट, all these things what you see in them, you could be grateful for their patience, their ability to listen, their talents, उनके अंदर क्या टैलेंट्स है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, या गुड जजमेंट, विजडम, लाफ, उनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो आपको हंसाते हैं कभी कभी, राइट? सो यू कैन थिंक ऑफ ऑल दोज गुड थिंग्स, निग्लेक्ट ऑल द नेगेटिव थिंग्स दे हैव डन टू यू. अगर आपको रिलेशनशिप इंप्रूव करना है ना, तो सिर्फ फोकस ऑन व्हाट गुड दे हैव डन टू यू. एंड उनकी आईज अच्छी है, या उनका स्माइल अच्छा है, या उनका हार्ट काइंड है, इज अ काइंड हार्टेड, भले फिर वो दारू भी पीता होगा ना, तो भी आप उनकी अच्छी चीजें देखो. You could be grateful for the things you enjoy doing with the person. आप वो चीजों के लिए भी, कि हाँ मेरा हस्बैंड मुझे बाहर तो लेके जाता है यार, कभी कभी शॉपिंग तो करा देता है, साड़ी तो दिला देता है, ड्रेस तो दिला देता है. सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट. ओके. Or you could recall a time when the person was there for you, cared for you and supported you. अगर आपको और कोई चीज याद नहीं आती तो आप वो भी ध्यान कर सकते हो कि जब अच्छा रिलेशनशिप था, या एटलीस्ट स्टार्टिंग ऑफ द मैरिज था, जब उन्होंने आपके लिए बहुत सारी चीजें की. मे बी आपकी मदर इन लॉ ने आपको कुकिंग सिखाया होगा. मे बी आपकी मदर इन लॉ ने ये बताया होगा कि घर में हम चीजें कैसे अरेंज करते हैं, राइट? या हम क्या क्या बनाते हैं घर में, हम रिचुअल्स कैसे करते हैं, हम कोई सेलिब्रेशंस कैसे करते हैं. उन्होंने ये सब चीजें आपको सिखाई होगी. So be thankful for that if you're working on your mother-in-law's photo. After you have spent some time thinking about what you are grateful for about the person, पहले सिर्फ think करना है. ओके. पहले सिर्फ सब चीजों के बारे में सोचना है कि आपके लिए उन्होंने क्या क्या किया है, एंड बी ग्रेटफुल फॉर दैट. Put their photograph in front of you, and with a pen and notebook or on your computer, choose the 5 things you are most grateful for. सबसे ज्यादा आपको क्या लगा उसमें से, कि उन्होंने कितनी अच्छी चीजें आपके लिए की है, जो चीजें आपको टच कर गई है उनकी अच्छी, वो 5 चीजें आपको उनकी लिखनी है. ओके. There is no format for this. You can just write, I'm grateful for the time you have spent with me. I'm grateful my daughter that आप when I was emotionally down, आपने मुझे अच्छी बातें बोल के मुझे अपलिफ्ट किया, राइट? तो ये सब याद करके आपको लिखना है. Look at the photograph of the person as you make your list of 5 things. Begin each sentence with the magic words thank you. Address the person by their name and then write what you are grateful for. तो उन्होंने यहाँ पे फॉर्मेट भी दिया हुआ. You can use this format. Thank you, their name and for what.
सो थैंक यू जो भी नेम है, तो आप लिखोगे थैंक यू मंजूषा फॉर अटेंडिंग द क्लास एवरी डे, थैंक यू अकीला फॉर बीइंग देयर एंड कीपिंग योर कैमरा ओपन। तो मैं जिसको सामने में मेरे जो रिलेशनशिप के लिए वर्क कर रही हूँ, मैं उनके बारे में उनका नाम लूंगी, थैंक यू डैश, एंड देन यू आर गोइंग टू राइट व्हाट। तो पहले आपको सिर्फ देखना है, ऑब्जर्वर इफेक्ट देना है, विचार करना है कि आपको कौन सी चीजें उनकी अच्छी लग रही है, पूरी सोच विचार के व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर, एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू जॉन फॉर ऑलवेज मेकिंग मी लाफ, और थैंक यू मॉम फॉर सपोर्टिंग मी थ्रू कॉलेज। सो वेन यू हैव फिनिश्ड योर लिस्ट ऑफ ऑल द थ्री पीपल, एक बाय एक करना, पहले आपने एक फोटोग्राफ लिया किया, फिर सेकंड फोटोग्राफ यू लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द फोटोग्राफ, देन यू रोट अबाउट इट, देन थर्ड फोटोग्राफ लेना है, अगेन ऑब्जर्वर इफेक्ट देना है, एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग। So when you have finished your list for all the three people, continue with this magical practice by taking the photographs with you today and put them in a place where you will see them often. Whenever you look at the photographs today, thank the person by saying the magic words, thank you, and the person's name, like thank you Haley. उन्होंने एग्जाम्पल दिया, तो आप अपने हस्बैंड या जो भी रिलेशनशिप के ऊपर काम कर रहे हो, आप उनका नाम लोगे, राइट? तो आपको, सॉरी, आपको आज ये फोटोग्राफ्स को लेके ये करना है। नाउ सपोज इट्स नाइट, यू आर नॉट एबल टू डू, यू कैन डू दिस प्रैक्टिस टुमारो मॉर्निंग ऑल्सो, बट डोंट फॉरगेट कि आपका काउंट ऑफ ब्लेसिंग्स इंपॉर्टेंट, आज रात में मैजिक रॉक प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट, राइटिंग ग्रैटिट्यूड फॉर योर पेरेंट्स इंपॉर्टेंट, एंड डूइंग दिस प्रैक्टिस। तो कल आप दिन में कोशिश करें कि जब भी हो सके ये प्रैक्टिस को फिनिश करने की। इफ यू आर मूविंग अराउंड अ लॉट, कैरी द फोटोग्राफ्स विथ यू इन योर बैग और पॉकेट, एंड मेक एन एफर्ट टू लुक एट द फोटोग्राफ्स 3 times ड्यूरिंग द डे, फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर। ओके, आप अगर बाहर जाते हो, आप ऑफिस जाते हो, तो ट्राई करो कि आप ये फोटोग्राफ्स आपके साथ लेके जाए। अगर आप घर पे हो तो ऐसी जगह पे रखिए कि जहां पे आपको बार बार दिखे और आप उनको थैंक यू बोलते रहो आफ्टर द प्रैक्टिस। Now you know how to use gratitude's magical power to transform your relationships into magical relationships. Although it is not the part of the requirement of this book, you may want to take this amazing practice and use it every day if necessary to make every relationship you have magnificent. तो यहाँ पे वो भी बता रहे हैं कि अगर आप इस प्रैक्टिस को रोज आपके लाइफ में ले आते हो, तो आप देखोगे आप आपका हस्बैंड आपके पीछे 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 आना शुरू हो जाएगा, आपकी मदर इन लॉ आपको पीछे 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 ला के हाथ में देना शुरू कर देगी, आपका फादर इन लॉ रोज कुछ ना कुछ आपके लिए लेके आ जाएंगे, आपके बच्चे आपका सुनने लग जाएंगे। तो अगर आप रोज इस प्रैक्टिस को लाते हो, क्योंकि ग्रेटिट्यूड आप जितना करोगे उतना आपको रिटर्न में मिलेगा, दैट इज द लॉ व्हाट शी इज सेइंग। इफ यू प्रैक्टिस फॉर 1 hour, आपको 1 hour जितना मिलेगा। इफ यू प्रैक्टिस फॉर 2 hours, आपको 2 hours। इफ यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर 5 hours, यू विल गेट in return 5 hours. So you can use it on the same relationship as many times as you want. आप जितनी बार करना चाहते हो, जितनी बार आपको वो फीलिंग आती कि अब ये मेरा रिलेशनशिप अच्छा होना शुरू हो गया, तब तक आप करते रहो। द मोर यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर द गुड थिंग्स इन योर रिलेशनशिप्स, द फास्टर एवरी रिलेशनशिप इन योर लाइफ will miraculously change. Okay, so the more you can be grateful for the good things in your relationship, तो आज से हमको वो बंदे में जो भी नेगेटिव है वो नहीं देखना है। वी हैव टू स्टार्ट लुकिंग ओनली फॉर द पॉजिटिव एंड बी ग्रेटफुल फॉर दैट, कि चलो उसने मुझे बाहर खाना तो खिलाया, भले मेरे साथ में झगड़ा किया बट मुझे बाहर ले जाके खाना तो खिलाया, राइट? आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ राउंड, एटलीस्ट ही टुक मी फॉर अ राउंड, भले फिर शॉर्ट राउंड के लिए लेके गया, छोटा ही राउंड लेके गया, बट एटलीस्ट ही डिड फॉर मी। सो बी ग्रेटफुल कि मेरे 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 लिए जो भी छोटी छोटी चीजें जिन्होंने की, मेरे मदर इन लॉ ने की, मेरे फादर इन लॉ ने की, या मेरे बच्चों ने की, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। Start being grateful for that. So today's magical practice number 3, repeat the steps 1
to 3 of magic practice number 1, that is count your blessings. Make the list of 10 blessings, write why you are grateful for. I hope you all have understood the format. I would like to hear today what and how you're writing. Then choose 3 of your closest relationships and collect a photograph of each person. With the photo in front of you, write 5 things you are most grateful for about each person in your journal or on your computer. But try to write in your journal. Begin each sentence with the magic words thank you. Include their name and what you are specifically grateful for. तो उनका नाम लिखना नहीं भूलना, ओके? जो भी आपके बेटी का नाम है, या हस्बैंड का नाम है, या वाइफ का नाम है, या आप जिनके ऊपर भी वर्क कर रहे हो उनका नाम लेना मत भूलना. Carry the 3 photographs with you today, or put them in a place where you will see them often. Look at the photographs at least on 3 occasions and speak to the person's face. यानी फोटो देख के आपको उनसे बात करनी है कि थैंक यू, या थैंक यू आप हो मेरी लाइफ में, थैंक यू आपकी वजह से मेरी लाइफ इतनी अच्छी चल रही है, थैंक यू आपने मेरे लिए ये काम कर दिया, थैंक यू आप मुझे शॉपिंग पे लेके गए, थैंक यू आपने मैंने एक छोटी सी चीज डिमांड की थी वो खाने की, आप लेके आ गए. अगर आप छोटी छोटी बातों में थैंक यू ढूंढना शुरू कर दोगे और थैंक यू बोलना शुरू कर दोगे, आप देखोगे. और दिल से बोलना, ऐसा नहीं हो जैसे हम रोज पहले भी बोलते थे थैंक यू. दिल से बोलना है. दिल से फीलिंग आनी चाहिए कि आप वो चीज के लिए शुक्रगुजार हो. और जब आप ये अपनी लाइफ में ला दोगे ना, तो आप देखोगे मैजिक होना शुरू हो जाएगा. दिस बुक इज ऑफ दैट मैजिक्स कि आपको बहुत चीजें अलग दिखनी शुरू हो जाएंगी. यानी हर हर रिलेशनशिप में आपको फर्क नजर आएगा. आप जो मांगोगे वो मिलते जाएगा, आप जो उनके पास से काम कराना चाहोगे वो करते जाएंगे, ऐसा हो जाएगा. बट यू हैव टू बी ग्रेटफुल. बिकॉज अगर आप दिल से उनके लिए थैंक यू नहीं बोलोगे, आप धन्यवाद नहीं करोगे, आपको कोई चीज रिटर्न में मिलेगी ही नहीं. इट इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. Every action has an equal reaction. Isaac Newton's law. To remember that, before going to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Tomorrow we have magical health also. Try to keep one color paper with you if you can. It can be this small also. I mean this size also. Itna to bhi. Try to keep one color paper for tomorrow with you. I'll stop the screen and let's come on. Yes. So today's chapter से related कोई question आ रहा है दिमाग में, कुछ practices को लेके, या फिर और कोई question आ रहा है आपके mind में? You can ask that also. Just wanted to reconfirm. Yes. First will be the magic rock practice tonight. हाँ. Then tomorrow morning, I will write a gratitude note for my parents, count my blessings, Yes. and the 3 photographs and the relationship. Yeah. Correct? The 3 photographs relationship. So Hmm. count your blessings and writing for your parents. If you can see, what I suggest is that if you write for your parents every day, it really helps you. It really changes your life. So that is why I make it a focus that yes, you should write for your parents every day. I myself write every day for my parents. I forget all the negative things what my parents did, and I just focus on the good things what they have done for me from my childhood, and I just write about that. So writing for parents is very important. अब ये आपकी प्रैक्टिस में रोज आ जाना चाहिए कि सुबह में उठे कि हमने हाफ एन आवर 1 आवर अपने आप को देना है, कि जहाँ पे हम सिर्फ it takes only 50, once you see now maybe you're not used to writing, but once you'll start writing now it will take hardly 5-10 minutes to write 10 gratitude, 5 of your mother, 5 of your father, then write 10 count your blessings. Half an hour में वो हो जाता है आपका basically. Okay, count your blessings में आपको क्या करना होता है कि हमने
जो भी हमारे पास चीजें हैं, अगर नहीं कोई चीज होती है ना, तो कल का दिन स्कैन करने का, कि कल हम कहाँ गए थे, राइट, हमने सुबह में उठे, हमने क्या किया, हमने कौन सा ब्रेकफास्ट खाया, तो उसके लिए आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैड अ वेरी गुड हेल्दी ब्रेकफास्ट, आई हैड टी, आई वेंट आउट विथ माई सन और आई वेंट आउट विथ माई हस्बैंड टू गेट बाजार। छोटी छोटी चीजें, एकदम छोटी छोटी चीजें, जो भी आपको याद आती है ना, आपने क्या अच्छा किया पूरे दिन में, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। कल आपके पास पैसे थे कि आप दूध ला पाए, आप उसका काउंट योर ब्लेसिंग्स में उसके बारे में लिखिए। कल आपके पास तकिया था सोने के लिए, आप उसके लिए लिखो। कल आपके पास पलंग था, बेड था, आप उसके लिए लिखो। आप बाहर गए, आपने कुछ ऑर्डर किया, या ऑनलाइन जेप्टो से कुछ मंगा लिया, या डंजो से कुछ मंगा लिया, आप उसके लिए थैंक यू लिखो, कि मुझे घर तक चीज आ गई, थैंक यू। राइट। राइट। तो काउंट योर ब्लेसिंग में ये सब चीजें आती है, कि आप बोल रहे हो, बोल रहे हो, बोल रहे हो, जो जो चीजें आपको मिल रही है आप उस, और आप देखोगे जिस दिन हम प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको दिखेगा बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें अपने पास होती है, हमको दिखता नहीं है क्योंकि हम उतना अलर्ट नहीं रहते, बिकॉज वी हैव टेकन लाइफ फॉर ग्रांटेड, राइट। एंड मैम, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड दैट ऑलवेज हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ नहीं रह पाते हैं। सो जैसे आपने कहा फेक इट टिल यू मेक इट, सो आई ऑलवेज ट्राई टू डू दैट. So sometimes I am in your conversation, sometimes I'm trying to get it, and sometimes, but I try to fake it. वो होता है मेरे साथ, बिकॉज हमेशा मैं वो माइंड में नहीं रह पाती हूँ. सबके साथ होता है, सिर्फ आपके साथ नहीं होता है। नेगेटिव माइंडसेट, यार, रोज कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आना होता है हमारे सामने, हम कितना भी ट्राई करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ होता है। पर मैं क्या बोलती हूँ, उसका भी एक्सपीरियंस लेना, नेगेटिव सिचुएशन का भी एक्सपीरियंस लेना, एंड देन उसी समय उसमें से बाहर आना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। पूरा दिन उसको लेके एग्जैक्टली, नहीं लाइक, बैठना है। राइट राइट, आई गेट अ नेगेटिव थॉट, देन आई से नो नो नो, आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट. यस, ऐसा. और यू से आई एक्सेप्ट एंड आई लेट यू गो, आई एक्सेप्ट एंड आई लेट यू गो, आप जितना ऐसे, सॉरी, दैट इज द वे ऑफ ट्रिकिंग योर माइंड, आई एक्सेप्ट एंड आई लेट यू गो। तो आपकी वो जो नेगेटिव थॉट है अपने आप निकल जाती, क्योंकि आप उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हो कि ये आई है मेरे पास, बट फिर उसको लेट गो भी कर रहे हो। तो आई एक्सेप्ट एंड आई लेट इट गो, एंड इतना ही बोलना है। ओके, म्यूट योर सेल्फ। यस धारा जी। मैम, आई हैव अ क्वेश्चन दैट मुझे ये क्वेश्चन पूछना था आपसे कि चलो हम किसी को चेंज नहीं करते, बट सामने वाला पर्सन हमारे पीछे हाथ धो के पड़ा हो कि तुम चेंज हो जाओ, तुम ये चेंज करो अपने आप में, तुम वो करो, तो उससे भी तो इरिटेशन होता है। तो उसके लिए फिर रिलेशनशिप, उस पर्सन के लिए हम कैसे अच्छी बातें लिख सकते हैं? मतलब घूम घूम के वही चीज आती है ना दिमाग में उसके लिए। आई क्लैप फॉर यू। वेरी गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड, अ वेरी गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड। आज आई ओपनिंग होगी सबकी, राइट। अभी हम क्या बोलते हैं, कि सामने वाला अपने को चेंज होने के लिए बोल रहा है, राइट, दैट वाज योर क्वेश्चन। कैन यू यस। रिपीट योर क्वेश्चन धारा? यस मैम, मेरा क्वेश्चन यही है कि भाई सामने वाला पर्सन हमारे पीछे पड़ा हो कि तुम चेंज हो जाओ, तुम चेंज हो जाओ। मतलब जब से हमारा बर्थ हुआ है, पेरेंट्स ने कहा, इन लॉज के घर गए तो इन लॉज ने बोला, भाई और बहन के रिलेशन में भाई बोलता है या भाभी बोलती है, मतलब कोई भी एक अननोन पर्सन हमारी लाइफ में आता है, वो बोलते ही रहता है कि तुम्हें चेंज होने की जरूरत है। तो उस टाइम पे ग्रेटिट्यूड नहीं रहता हमारा। मतलब हम सोचते कि हम अपने आप में क्या चेंज करें, हम तो कुछ बोलते नहीं, हम इतना ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, करते हैं, तो भी हमको क्यों चेंज करने के लिए बोलते हैं वो लोग? हाँ, अननोन पर्सन नहीं बोलता है, आपके नोन पर्सन्स बोलते हैं। यस ये मैम, ध्यान नॉन तो करना, बोलते ही है, अननोन बट देख। पर्सन, अननोन पर्सन आपको चेंज होने के लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि वो आपको जानता ही नहीं है। जो आपको जानते हैं ना, वही आपको बोलते हैं कि चेंज हो जाओ, चेंज हो जाओ, ये करो, वो करो, राइट। क्या मैम ये आपके साथ भी होता था पहले? ऐसा होता था क्या? मेरा तो इंटरकास्ट था।
यस, इसीलिए ही मैं बोल रही हूँ। मतलब इवन माय हस्बैंड वाज ऑलवेज सेइंग तुम्हें मेरे घर के हिसाब से चलना चाहिए, तुम्हें मेरी मम्मी के हिसाब से चलना चाहिए, तुम्हें मेरी बुआ के हिसाब से चलना चाहिए। अरे यार, मैंने बोला तुम 5 लोग, मैं 5 देवियों के रूप तो धारण नहीं कर सकती। एक ही समय पे। ट्रू। सो हियर देखो, अभी वो सामने वाला हमको चेंज करने के लिए बोल रहा है, तो डू यू थिंक आप एक्सेप्ट करोगे उस चेंज को? नहीं कर पा रहे हो, राइट? आपको ऐसा हो रहा है कि मैं चेंज नहीं कर पा रही। तो द बेस्ट वे इज ग्रैटिट्यूड। और आप बोल रहे हो कि मैं कितना भी ग्रैटिट्यूड कर रही हूं, पर मुझे वो सामने वाला जब बोलता है चेंज होने के लिए, मैं चेंज नहीं हो पाती हूँ। मुझे चेंज नहीं होना, बिकॉज यू आर रेजिस्टिंग योर थॉट। आपके अंदर से उस थॉट को रेजिस्टेंस आ रहा है। समटाइम्स चेंज इज, रिमेंबर, चेंज इज फॉर गुड ऑल्सो। कभी कभी चेंज जो होता है ना, वो हमारे बेहतर के लिए होता है, बट हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। एंड जब हम्म। आप बहुत रेजिस्ट करते हो ना कोई थॉट को लेके कि हाँ मुझे बहुत रेजिस्टेंस आ रहा है कि यार ये मुझे चेंज होने के लिए बोला, मैं किसी के लिए क्यों चेंज हो जाऊं, मैं क्यों चेंज हो जाऊं, देन यू विल नेवर बी एबल टू चेंज। तो यहां पे यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड, इज दैट चेंज गुड फॉर मी, देन एक्सेप्ट इट। अगर आपका दिल बोलता है कि दिस चेंज इज नॉट गुड फॉर मी, आई डू नॉट वांट टू चेंज अकॉर्डिंग टू अदर पीपल्स ओपिनियंस, राइट? अगर मुझे दूसरों की जो ओपिनियन उन्होंने मेरे बारे में बनाया है और वो चाहते हैं कि मैं उस तरीके से बिहेव करूं, और वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, द बेस्ट वे इज टू कम्युनिकेट टू देम। द बेस्ट वे इज दैट यू सिट विद देम। पहले तो ग्रेटफुलनेस में तो रहना ही है, ग्रैटिट्यूड तो करना ही है। ओके, ग्रैटिट्यूड में आप वो सेंटेंस डालो दैट दे आर नॉट आस्किंग मी टू चेंज। आपके ग्रैटिट्यूड में आप वो सेंटेंस डालो दैट दे आर सो अंडरस्टैंडिंग विथ मी, दे आर लेटिंग मी बी हाउ आई एम, दे आर एक्सेप्टिंग मी। हमने आज ही बात किया, दे आर एक्सेप्टिंग मी द वे आई एम। आप जितना आप ऐसे लिखोगे ना कि आई एम थैंकफुल टू माई हस्बैंड दैट ही इज एक्सेप्टिंग मी द वे आई एम, आप देखना आपको चेंज बोलने का ही छोड़ देंगे। आप जितना लिखोगे आई आई एम ग्रेटफुल टू माई इन लॉज दैट दे आर लेटिंग मी बी वॉट आई वॉन्ट टू बी, मुझे जैसा मैं रहना चाहती हूँ वो मुझे रहने दे रहे हैं। आप धीरे धीरे देखोगे, क्योंकि आप, आपके माइंडसेट में भी अभी थोड़ा सा वो नेगेटिव है कि हाँ वो मुझे बार बार चेंज होने के लिए बोल रहे हैं। मैं जब शादी करके आई मुझे उन्होंने यही बोला कि हमारे तरीकों से चलो। तो जब वो ऐसी बात करते हैं ना, तो देर आर टू वेज ऑल्सो। आप उनको बोलो थोड़ा मैं अपना वे करूंगी, थोड़ा मैं आपका वे करूंगी, दैट वे यू क्रिएट अ बैलेंस। मैम, आपको क्या लगा होगा कि मैंने सारी चीजें अपनाई नहीं होगी? मैंने इवन क्या है ना, जनरेशन गैप की वजह से, और मेरी इन लॉज है ना, वो कम पढ़े लिखे हैं, तो उनकी वजह से वो अपना जो चुस्त रिचुअल है ना, वो छोड़ नहीं रहे। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, इवन माय हस्बैंड ऑल्सो इंजीनियर, बट हम्म। दे ऑल्सो ही ऑल्सो फॉलो देम, हम्म। कि मम्मी पापा ने और बड़ों ने बोला है मतलब वो चीज करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं कि यार अपने एजुकेशन के हिसाब से थोड़ा, अब हमारे घर जो लड़कियां आएंगी, मतलब मेरे 2 और देवर हैं, उनकी भी वाइफ आएंगी, तो अभी से चेंज करना शुरू करे तो क्या है, वो भी लोग आएंगे तो कंफर्टेबल हो जाएं। तो वो नहीं, बस पकड़ के रखना है उस चीज को, उस रिचुअल्स को जो अभी फॉलो भी नहीं किए जा रहे हैं। एग्जाम्पल दो रिचुअल का, एक सिंपल एग्जाम्पल दो। बिकॉज सी एक शॉर्ट। रिचुअल, एक तो पहली बात है, अगर दे आर डूइंग देयर रिचुअल्स, लेट देम डू। इफ यू आर नॉट यस। कंफर्टेबल, देन यू हैव टू बी विद ओपन एंड कम्युनिकेटिव विद देम। यस मैम। यस। एक मैम, उस एग्जाम्पल दो। मामले में, हाँ हाँ, मैंने उस मामले में मेरा स्टैंड भी लिया है। एक्चुअली उनका रिचुअल कैसा है कि हमारे घर में कुछ शादी वगैरह होता है, या हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, या हमारे बड़े जो लोग आते हैं ना, जैसे मेरी हस्बैंड के बुआ और उसके हस्बैंड, तो उनका एक रहता है कि वो लोग ड्रिंक करेंगे हमारे घर, लेट नाइट तक खाना खाएंगे, और तुम्हें लेट नाइट तक जगना है, और तुम्हें उनको गरम गरम खाना सर्व करके देना है। जैसे वो 12 बजे भी आए, 2-3 बजे भी आए, तो तुम्हें उसके लिए जगना है। वो रिचुअल पहले से ही आता है, मतलब मेरी मम्मी ने भी किया है, मेरी चाची ने भी किया है, तो अब तुम्हें भी करना पड़ेगा।
दैट आई कांट एक्सेप्ट दैट थिंग्स कि यार मैं 2-2 3-3 बजे तुम्हारे गेस्ट के लिए नहीं जग सकती। स्टार्टिंग में मैंने किया, जितना हो पाया मैंने किया, बट नाउ आई कांट डू इट। तो वो उस चीज को बहुत प्रेशराइज करते हैं कि नहीं करना तो पड़ेगा ही, वरना फिर तुम अपने घर चली जाओ। तो वो बात वहां पे आ जाती है। तो देखो कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है कि यार बड़े हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट करना वो अलग चीज है, बट बड़ों को खुद की भी तो रिस्पेक्ट करना आना चाहिए ना, कि हमको कितना उसके घर जाना है, हमको कितना फिर नई बहू आ रही है या नया कोई पर्सन आए तो उसके हिसाब से भी थोड़ा चेंज होना जरूरी है। हम्म। तो वो नहीं हो रहे हैं, मतलब सिर्फ बहू को चेंज करना है, बहू को हैबिट्स में लेके आना है, उसको रिचुअल्स में लेके आना है, बट खुद को चेंज नहीं होना है। तो वहां पे बात बहुत टसल वाली हो जाती है। तो फर्स्ट थिंग ना, यू ऑल्सो स्टॉप रेजिस्टिंग। ये जो भी यस। चीजें हो रही है ना, पहले तो अपने आप को बोलो, आई एक्सेप्ट दैट दिस चैलेंज इज कमिंग इन माई हाउस, और दिस चैलेंज इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी, एंड आई एम गोइंग टू फेस दैट चैलेंज। जब अपने माइंडसेट को आप उस तरीके से तैयार करोगे ना, you will start bringing that change. Now see, these are personal things which we cannot enter your house and do it, but you have that ability to change. अगर आप अपने मन को बना लो कि आप कम्युनिकेशन क्लियर रखो उनके साथ में, कि दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एंड इतने तक ही मैं जाग पाती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर मेरी भी सेहत खराब होती है। इसके बाद मैं बना के रख दूंगी, चाहिए तो आप परोस दो। आई हैड डन एवरीथिंग मैम। आई हैड डन एवरीथिंग। दैट्स व्हाई ओनली आई सेड ना कि हाँ, कुछ सो कुछ यू आर। चीजें ऐसी होती है कि हमको बदलना नहीं होता, क्योंकि समाज परिवर्तन हो रहा है। ये चीज सामने वाले को भी समझना चाहिए। देखो अभी पहले मोबाइल टीवी का जमाना नहीं था, अब मोबाइल टीवी का जमाना आया, उस हिसाब से व्हाट्सएप आया, उस हिसाब से सारी चीजें अपडेट होती जा रही हैं। बट इस इतनी अपडेट के जमाने में भी लोग पुरानी सोच को लेके ही बैठे हैं, तो उसकी वजह कि से हम काफी सोच, सारी चीजें। आज आप उनकी सोच को पुरानी बोल रहे हो, कल जो आगे यस। का जनरेशन आएगा ना, वो आपको भी बोलेगा कि आपकी सोच पुरानी है। यस बोलेगा, क्योंकि देखो, बोलेगा, बट कंट्रोलिंग नेचर नहीं होना चाहिए ना। हाँ, वो मैं हम वही बोल ग्रेटिट्यूड रही में फिर भी तो हैं, हम फिर भी ग्रेटिट्यूड में तो हैं। हूँ। आप अपने अंदर फाइंड आउट करो कि आप कहाँ पे ये कंट्रोलिंग चीज ला रहे हो। आपको खुद ध्यान आएगा। राइट इट डाउन टुडे इन द क्वेश्चन ऑफ योर्स कि मैं ये कंट्रोलिंग चीज कहाँ से ला रही हूँ। आपको खुद आपका क्वेश्चन मिलेगा, आंसर मिलेगा। सेकेंड थिंग, आप घर में जो चेंज लाना चाहते हो ना, आप अकेले नहीं हम्म। कर पाओगे अभी। राइट? जब तक आपकी देवर देवरानियां कोई देवरानियां आती नहीं है ना, अभी वाली, इट विल बी रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। जब वो आके वो करना शुरू करेंगी ना, कि हम रात तक जग नहीं सकते हमारे, बिकॉज एक अपनी भी लाइफ होती है, और आप उनको बैठ के समझाओ। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि हो सकता है काफी पुराने विचारों के भी हो, तो वो उनकी उनकी सोच हम बदल नहीं सकते। देखो, हम किसी की सोच, ना वो आपकी सोच बदल सकते हैं, ना आप उनकी सोच बदल सकते हो। ये तो वेरी क्लियर है, राइट? आपको भी करना क्या है, कि मुझे जो चीज ठीक लगती है मैं उसका स्टैंड लूंगी। व्हाट यू ऑलरेडी सेड दैट यू आर टेकिंग, राइट? यू आर टेकिंग अ राइट स्टैंड। आपका कॉन्शियस अगर ऐसा बोल रहा है कि वट एवर आई एम टेकिंग इज राइट, देन इट्स ओके। देन इट्स ओके, यू टेक दैट स्टैंड, यू कीप ऑन योर स्टैंड। बट अगर, अंडरस्टैंड, इफ इट इज अफेक्टिंग योर मैरिज लाइफ, ओके, लाइक, अगर आपको ऐसा बोला जा रहा है कि हाँ, मुझे तो जाके अब आप अपने मायके में चली जाओ फिर, राइट, दैट इज अफेक्टिंग योर मैरिज लाइफ, then you have to do more gratitude now, right from today, for your husband, for your in-laws. आप जितना gratitude लिखोगे, आपको ऐसे लग रहा है मैंने gratitude लिखा है, but that feeling is not there in that gratitude. क्योंकि अगर वो फीलिंग उतरी रहती ना, तो थोड़ा तो आप चेंज देखते उनके अंदर, बट फीलिंग के साथ में शायद नहीं किया गया है ग्रैटिट्यूड। अगर आप दिल से वो चीज को ग्रैटिट्यूड करते हैं, और अरविंद सर बोलते हैं ना कि आई, मेरे पास जो भी चैलेंज आ रहा है उसको कबूल करो। तो पहले तो आप एक्सेप्ट कर लो कि दिस चैलेंज इज देयर, आई एम फेसिंग दैट, बट ऑल्सो नहीं मैम, रिमेंबर मैंने वन ये थिंग। एक्सेप्ट तो कर लिया है, मेरे अंदर वो अभी इतनी हलचल नहीं मची हुई है, अब तो मैं साइलेंट ही हूँ। बट ये जो क्वेश्चन मेरा पूछने का मुझे इसीलिए लगा
कि शायद यहाँ से कुछ आपके पास से आंसर मिल जाए, क्योंकि आपने बोला ना कि कोई आपको बदलना चाहता है, तो वहां से हमारी बात की शुरुआत हुई। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि यार मतलब मैं कहाँ गलत हूँ, मतलब इस जनरेशन के हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं गलत हूँ। अगर मेरी जगह पे कोई और लड़की आती तो वो भी इतनी रात तक तो नहीं डेफिनेटली, जगती। डेफिनेटली, डेफिनेटली आई अग्री विथ यू। मैं यही बोल रही हूँ कि हमको चेंज होने की जरूरत नहीं है। बट एक एक बात मैं आज बोलूंगी कि व्हेन यू आर इन रिलेशनशिप, जब आप शादी करके आते हो ना, आपकी फैमिली भी होती है, राइट? और हम्म। हमको अगर, सी इफ देर आर फ्यू थिंग्स विच अफेक्ट योर फैमिली लाइफ। आपको पता है ना कि घास जो होती है, घास जब तूफान आंधी आती है तो झाड़ भी गिर जाते हैं, बट घास जो है वो सिर्फ ऐसे होता है और फिर बाद में वो रुकने के बाद फिर ऐसे हो जाता है, राइट? तो हमको एज सिचुएशन काम करना होता है। तो जब आपको ऐसा लगता है कि हाँ, नाउ इट इज रियली वेरी, इट इज गोइंग टू मच आउट, और मुझे मेरा रिलेशनशिप भी मुझे बचाना है, इट हम्म। आपको आपको ये देखना है कि आप आपके हस्बैंड को कितना प्यार करते हो। और अगर आपको वो रिलेशनशिप चाहिए तो यू कैन नॉट बी ऑफ कंट्रोलिंग, समवे यू आर ऑल्सो कंट्रोलिंग। सी यू, आपका स्टार्टिंग वर्ड्स क्या था कि मेरे इन लॉज के रिचुअल्स है और मेरा हस्बैंड भी वही फॉलो करता है, राइट? सो व्हाई यू वांट देम टू स्टॉप दिस रिचुअल? you have to start communicating with your husband first. First, you have to be grateful for your husband because he is only one who's going to help you to bring the change. वो ही आपको हेल्प करेगा कि मैं ये घर में हम क्या चेंज ला सकते हैं। क्योंकि जब वो बात करेंगे आप अपने माता पिता से, तो शायद वो समझेंगे। बट बट आपको, मैंने आपको वही तो बोला मैम कि वो खुद ही नहीं चाहता, वो खुद ही स्टैंड नहीं ले रहा, वही तो दिक्कत है ना। मैंने वही तो आपको स्टार्टिंग में बोला तो कि आप अगर ग्रेट, वो मेरे साथ होते तो मैं तो चेंज कर सकती थी ना, मेरे सास को उनको समझा पाती अच्छे से। मैं आपको वही बोल रही हूँ कि आप ग्रेट, अपना ग्रेटिट्यूड बढ़ाओ बढ़ा आपके देती थी। हस्बैंड के लिए कि माय हस्बैंड इज वेरी अंडरस्टैंडिंग, ही इज लिसनिंग टू मी फॉर वट एवर आई एम सेइंग, ही इज लिसनिंग टू मी एंड इज सपोर्टिंग मी इन ऑल दिस थिंग। ये जितनी बार हो सकता है ना, सिर्फ ये 3 सेंटेंसेस भी आप बार बार लिखो। और सिर्फ लिखना नहीं है, वो एक एक वर्ड को जब आप विजुअलाइज करोगे ना और बोलोगे और पढ़ो, दिमाग में लोगे, तो ही वो आपको इफेक्ट करेगा। बिकॉज आपने ग्रेटिट्यूड अगर आप बोल रहे हो, लिखा है, और फिर भी चेंज नहीं दिख रहा है, हम्म। तो यू हैव नॉट यूज द राइट वर्ड्स, और इधर यू हैव नॉट डन विथ फीलिंग। अगर आपने फीलिंग के साथ में ग्रेटिट्यूड नहीं किया ना, तो बुक्स भरते जाओगे। मैं इनिशियली जैसे बुक्स भरती थी, मैं लिखती जाती थी, लिखती जाती थी, लिखती जाती थी, पर मुझे कुछ फर्क नजर नहीं आता। बट जिस दिन उस कॉन्सेप्ट को आप समझोगे ना कि भाई फीलिंग के साथ में मुझे करना है, और मुझे यकीन है कि मेरा हस्बैंड, मैं इतना बिलीव करती हूँ कि मेरा हस्बैंड मुझे सपोर्ट करेगा। आप अभी बोल रहे हो कि वो नहीं कर रहा है, यू आर अगेन कमिंग बैक। आपके वर्ड्स के ऊपर ध्यान दो, आप वही बोल रहे हो कि वो नहीं करता है, वो स्टैंड नहीं लेता है। तो आपने वो बिलीव बना लिया है आपके माइंडसेट में कि वो नहीं स्टैंड लेगा और वो नहीं चेंज होगा। बट हमने सीखा है ना मैजिक बुक में कि हम जितनी प्रैक्टिसेस करेंगे, दीज प्रैक्टिसेस बिंग मिराकल्स। और ये मैं गारंटी देती हूँ, मैं 101% की गारंटी देती हूँ, क्योंकि मैंने जिसको भी ये चीज बोली और जिसको भी ये चीज जिन्होंने की है ना एकदम शिद्दत से, उन्होंने वो चेंज देखा ही देखा है। माय मेड, ओके मेरी मैम। जो मेड है ना, मेड, उसके घर में भी चेंज आया है, उसके घर में भी ओके। चेंज आया है। बिकॉज आई taught her all these things and she was going through a major issue। तो ऐसा नहीं है कि नहीं, तुम जितना, क्योंकि देखो आपके मुंह से फिर से वही शब्द निकल रहे, और किधर ना किधर आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा है कि मैं जो बोलूं मेरे तरीके से भी चले घर में, क्योंकि मुझे चेंज लाना है। बट नहीं, मुझे इस उस वे में चेंज नहीं लाना है, मैं सिर्फ मेरे फ्रीडम के लिए बात कर रही हूँ। क्योंकि देखो आगे की जनरेशन वो फॉलो नहीं, मैं सिर्फ समझाना चाहती हूँ, मैं उनको फोर्स नहीं करना चाहती, ना ही कंट्रोल करना चाहती हूँ। बट देखो मेरी पसंद नापसंद भी तो मुझे रखने का हक है ना, 5 जने मुझे अपने तरीके से चला रहे हो, तो दैट इज मैं आई सेड सोचूंगी ना, तो यू कीप योर सही ना। स्टैंड, आप आपका स्टैंड लो,
आप आपका स्टैंड लो, दैट इज द राइट थिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट इज अ रॉन्ग थिंग। आप आपका स्टैंड लोगे ही लोगे, आपको लेना ही हम्म। आपका स्टैंड। आपका स्टैंड नहीं लोगे तो कैसे चलेगा? और उसमें क्या होता है मैम, जब अगर हम बात नहीं करेंगे तो हमारे इमोशंस, मेंटल, हर एक एरिया में हमको ही अफेक्ट आएगा, हेल्थ के एरिया में। क्योंकि हम ही नहीं बात करेंगे, हम वो चीज अंदर ही अंदर रखेंगे, अंदर ही अंदर पीते रहेंगे, बात भी नहीं कर पाएंगे, ना कुछ कह पाएंगे, स्टैंड ले पाएंगे, तो वो इफेक्ट तो हमारी हेल्थ को भी करेगा ही ना कहीं पे। इसीलिए मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ इसमें। बट आपने जैसे बोला, मैं वैसे फीलिंग के साथ अभी स्टार्ट करूंगी। वैसे मैं लिखती हूँ 5 ग्रेटिट्यूड्स, वो बहुत फीलिंग के साथ लिख रही हूँ, और थोड़ा बहुत माइनर मुझे चेंज दिख रहा है उसके रिलेटेड, क्योंकि ये तो मैं जर्नी में काफी टाइम से हुई। मैं वही बोल रही हूँ, तो तो आपको तो अभी प्रैक्टिशनर हो जाना चाहिए, बिकॉज यू शुड लाइक हैव बिलीव कि नहीं ये तो चेंज होगा। पर अगर आपके वर्ड्स आप ध्यान करोगे ना, आपके वर्ड्स उस टाइप के नहीं आने चाहिए। आपने अपने ओके। माइंडसेट में ये बोलना है कि नहीं, ही इज गोइंग टू सपोर्ट मी, ही इज चेंजिंग, ही इज लिसनिंग टू मी। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे ही विल स्टार्ट सपोर्टिंग, ही विल स्टार्ट स्पीकिंग इन द फैमिली। क्योंकि पहले ओके। तो देखो, आप आपके इनलॉज को चेंज नहीं कर पाओगे, मैं हम्म। गारंटी देती हूँ। और आपको चेंज करना भी नहीं है उनको, करना भी आपको नहीं है अपने मुझे। आप को चेंज करना है। आप आपके हस्बैंड के लिए ग्रेटिट्यूड लिखो, आप जितना उनके लिए ग्रेटिट्यूड लिखोगे ना, यू विल सी द चेंज ऑटोमेटिकली। कि अगर वो चेंज होता है ना थोड़ा सा भी, एंड वो सपोर्ट हम्म। करना शुरू करता है, तो आप देखना आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ गिव इन कर देंगे। उनको गिव इन करना ही पड़ेगा, बट हम्म। अकेले नहीं कर पाओगे। मैं आपको वही समझा रही हूँ। और मैंने एक बात बोली कि जब रिलेशनशिप के ऊपर आता है ना, तो रिलेशनशिप्स हैव टू बी हैंडल इन अ वेरी डिफरेंट वे। तो मैंने इसके लिए आपको वो झाड़ का एग्जांपल किया कि जब आंधी आती होती है ना, तो अगर झाड़ सीधा ही खड़े रहता है, वो उसको भी उतार के फेंक देती है आंधी। बट जो ग्रास रहता है ना, वो झुक जाता है ऐसा, और वो फिर से ऐसा हो हम्म। जाता है बाद में जब आंधी रुक जाती है। आप समझ रहे हो मैंने इशारा हम्म। किस तरफ कर रही हूँ? कि where you need to balance, where you need to adjust, somewhere you need to have a balance। जब आप वो करना सीख जाओगे ना कि मैं ठीक है, एक दिन मैंने किया, दूसरे दिन मैं नहीं करूंगी, क्योंकि आज मुझे सोना है। रोज का नहीं होना चाहिए, हफ्ते में एक बार हो गया। इनवाइट करो घर में, यू कैनॉट से नो टू योर इन लॉज। इन्वाइट करो घर में, ये मैं करके दूंगी या करके दूंगा, जो भी आपको करना है आप उनके लिए करोगे एक दिन, हफ्ते में एक बार। दूसरे हफ्ते में मैं नहीं करूंगी, रोज रोज का होगा तो मैं नहीं करूंगी, हफ्ते में एक दिन होगा। एक्सेप्ट, बिकॉज यू कैनॉट ब्रिंग सडन चेंज, चेंज हैज टू कम। थोड़ा उनका भी सुनो, थोड़ा अपना भी करो। कभी सुनो, कभी मत सुनो। सो दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हम हर टाइम प्रेशर नहीं डाल सकते धारा पे। हम्म। वैसा भी करके देखो। ओके मैम। एंड ग्रैटिट्यूड तो आपको करना ही है, ग्रैटिट्यूड तो यू हैव टू बी देयर। द मोर यू विल फील एंड यस। डू योर ग्रैटिट्यूड, आई गारंटी यू 101% कि ये होता मैम जल्दी गुड न्यूज लेके आऊंगी मैं। है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। विल स्पीक इफ यू हैव टाइम आफ्टरवर्ड्स। और कुछ किसी को? मंजूषा जी, सपना जी, एनीथिंग एल्स? इफ नथिंग देन वी वाइंड अप दिस। मैम यस, मुझे कुछ कहना है मैम। यस, यस, बोलो। हमारा 1-to-1 सेशन हुआ था। आप आपको पता है कि मैं कितना टेंस्ड थी। आपने आज जो भी बोला धरा जी को, वही आपने मुझे भी बोला था। और मैंने वो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस किया। और एक हफ्ते से यहाँ कोई भी झगड़ा नहीं है मैम। एक्चुअली कल और आज तो हम लोग साथ बैठकर गाना गा रहे थे करोके पर। एंड वी वाओ, वर गुड टाइम। उसके लिए अमेजिंग, बोलना वाओ, है। तो अमेजिंग। दैट इज just कॉल्ड one मैजिक। thing, I believe that magic is in you, ma'am, and because you are telling, I am trusting you, and I'm doing exactly what you said. I believe in you, and I'm believing in the magic book, ma'am. थैंक यू, उसका थैंक मुझे यू। फायदा भी हो रहा है। यूनिवर्स थैंक्स, यूनिवर्स थैंक्स ही। यूनिवर्स जब इशारा करता है ना, मैं हम बोलते हैं ना कि जब क्या बोलते हैं, जब स्टूडेंट तैयार हो जाता है तो गुरु अपने आप आ जाता है सामने। इट इज दैट Yes, वे कि अगर आप लर्नर बन जाते हो ना, तो ऑटोमेटिकली सामने कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाता है। हमको भी yes, किसी ने हाथ पकड़ा था, राइट? तो yes, ऐसे होता है कि जब कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप अंदर से तैयार होते हो ना सीखने के लिए, तभी आपको गुरु मिलता है, नहीं तो आपको नहीं मिलता है।
इट इज नॉट यस एन इजी जॉब। तो भी ऊपर वाला वो अपने को सिखाने वाला बंदा सामने लाता है अपने। यस मैम, 24 years मैंने झेला है मैम, और मैंने सोचा था कि ये कभी भी ठीक नहीं होगा, लेकिन अभी 1 हफ्ते से मुझे विश्वास हो गया है कि सब ठीक हो गया है। ग्रेट, सी व्हाट वर्ड शी यूज, मुझे विश्वास हो गया है। दैट इज हाउ अपना बिलीफ सिस्टम रखना है आपको, कि हमको, मेरे को विश्वास है कि मैं इसको चेंज करके ही रहूंगी, मेरे को विश्वास है कि मैं मेरी वाइफ को चेंज करके ही रहूंगा, मुझे विश्वास है कि मैं मेरे हस्बैंड को या मेरे बच्चे को या मेरे इन लॉज को, जिसको भी वो चेंज। जब आप वो बिलीफ अपने अंदर बना लेते हो ना, और फिर ग्रेटिट्यूड में आते हो साथ में, तो वो चेंज होना ही होना है, होना ही होना यस है। सपना जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड गॉड ब्लेस यू। और आज मुझे थैंक मैजिक यू क्लू डियर। मिल गया है आज आपकी वजह से, सर थैंक यू रियली डियर, आप थैंक अपने यू। गुरु को फॉलो कीजिए, विश्वास कीजिए, आपका भी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगा। यस, विश्वास थैंक यू रखिए, सो मच। जो मैम थैंक कहती है वो उससे आपका भला ही होगा, मेरा यस, भी आई भला होगा। ब्लाइंडली ट्रस्ट टू हर, आई ब्लाइंडली ट्रस्ट हर। यस, आई नो, Yes, आई नो but धारा जी। should be blind only. आई Only नो then it is धारा जी। complete. धारा जी मुझे, मेरे साथ में बहुत पहले से जुड़ी हुई है, व्हाट्सएप पे तो हम बहुत लेने, आई कीप ऑन सजेस्टिंग हर, हेल्पिंग हर आउट व्हेन एवर देयर इज एन इशू, कुछ भी हो। तो इट्स ओके, लाइक हम, लाइक एक दूसरे को जब हम ये जर्नी में आते हैं ना, वी ट्राई टू हेल्प ईच अदर ऑल्सो, ट्राई टू डू दैट। वंस यू फर्स्ट अपने आप के अंदर वो चीजें लाओ, पहले सीखो, पूरा बुक को उतारो, जितनी बार हो सकता है ना उतारो, उसको डीप कॉन्सेप्ट में समझ के लो, बिकॉज इट इज नॉट एन इजी कॉन्सेप्ट, दिखता बहुत इजी है, बट मैं उसको इतना प्रोपोगेट उसके लिए ही कर रही हूँ, क्योंकि जब मुझे क्लियरली कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, तब मैंने उसको पकड़ा, और फिर मैंने बोला अब मैं नहीं छोड़ूंगी ग्रैटिट्यूड का पल्ला। ओके, Yes. फर्स्ट जस्ट बिलीव, अपने अंदर वो बिलीव लाओ कि ये होगा ही होगा, और जब वो फर्स्ट आप थिंग बिलीव आपने लाते यही हो। बोला था मैम, ये फर्स्ट थिंग आपने यही बोला था मैम, जब हम छोटे बच्चे थे तो हम मैजिक में बिलीव करते थे। राइट, तो अब हम एक्चुअली बिलीव मैं नहीं भी अभी, करते हैं। यस, अभी मैं छोटी बच्ची बनकर ही बिलीव कर रही हूँ मैम, मेरे राइट, साथ हो रहा है। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू। या, यस धारा जी, यू वांट टू से समथिंग, यू रेज्ड योर हैंड्स। यस मैम, इवन जैसे आपने बोला या अरविंद सर ने भी लास्ट टाइम, मुझे मेरे फादर के साथ बहुत चैलेंज था, और आप मानोगे लिटरली मैजिक हुआ है। मतलब वी आर नॉट टॉकिंग विथ ईच अदर फ्रॉम 2015 and not with eye contact also. आई And रिमेम्बर यू शेयरिंग, आई रिमेम्बर यू शेयरिंग। yes, and he is now literally talking with me, doing masti, देखो, mazak, आज आप and आज खुद बोल रहे हो कि मैजिक्स हैपन हुए हैं, तो व्हाई नॉट, आई बट मीन। मैम कोई कोई एरिया में लॉजिक बहुत ज्यादा चलता है ना, और ये नहीं जो तो, आपने वर्ड्स बोले कि वर्ड्स पे बहुत अफेक्ट है, सेल्फ यस, टॉक पे वर्ड्स बहुत आर ज्यादा। पावरफुल, अगर आप दिल से करोगे ना, और आप आपके, क्योंकि आपने माइंडसेट में जब बोलते हो ना कि वो नहीं चेंज होगा, वो स्टैंड ही नहीं ले रहा है, तो आपने वो माइंडसेट बना लिया है। बट आप कोशिश यस, तो करके देखो, आप बिलीव रखो कि वो उसका माइंडसेट चेंज करेगा, वो आपको सपोर्ट करेगा, तो आप उससे लिखो, ग्रैटिट्यूड में लिखो, दैट वे दो सेंटेंसेस, एंड फिर देखो यस फर्क मैम, होता है। ओके मैम, थैंक यू सो We मच। wind up? Yes. So यस, thank you everyone for joining. God bless you all. Don't forget to do your practices. I'll put the assignment थैंक यू मैम, part थैंक again. यू। थैंक यू Okay, मैम। I'll put the assignment part again in the group. अगर मैं नहीं डालूं तो प्लीज कोई प्राइवेट में मुझे मैसेज कर देना। थैंक यू ताहिरा, थैंक यू। सो यू कैन समटाइम्स, थैंक व्हाट यू सो हैपेंस है कि मैं मच। कोई काम में लग जाती हूँ या रिकॉर्डिंग को वापस डालने में लग जाती हूँ, तो मे बी आई माइट फॉरगेट असाइनमेंट। अगर नहीं आता है तो प्लीज मुझे रिमाइंडर दे देना। यस ठीक, मैम, थैंक यू। yeah, thank you. थैंक God यू bless you भैया, all. Have थैंक a यू सो good मच। night's sleep and have, थैंक यू, गुड थैंक यू। नाइट। गुड yes, नाइट मैम। good night. Good night. गुड नाइट मैम। Good night, Ramesh ji. Good night. Thank you, Ramesh ji. Patiently आप रहते हो, तो thank you.